السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين رواہ مسلم۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اللہ کی نگاہ میں کیا فضیلت ہے، اور جو لوگ دیگر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کے معنی اور مطالب پر غور و خوض کرتے ہیں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے جو انعام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک طرح کا وقار آتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی محفل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری یہ دنیا کی آنکھیں اللہ کی اس رحمت کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، مگر ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں اس نبی کے باتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ظاہری نگاہ سے زیادہ ان کی بات پر ہمیں ایمان اور یقین ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی محفلوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین سکینت نازل کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس کی گھیرا بندی کر لیتے ہیں۔ یہاں پر الگ ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں مگر یہ فرشتوں نے اس کو گھیرا کر رکھا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے یہ تین
چیزیں اللہ رب العالمین کے اس گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب العالمین ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین کے پاس جو معزز فرشتے ہیں وہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو اورنگ آباد کی مسجد توحید میں فلاں جگہ فلاں وقت میں یہ پروگرام چل رہا ہے، فلانا بھائی فلانا بھائی فلانا بھائی فلانا بھائی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے۔ سوچیے اللہ رب العالمین اپنے ملے اعلیٰ مطلب انتہائی مقرب ترین فرشتوں میں ہم لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی محفل آپ بتائیے جس میں اتنا بڑا ثواب یا اتنی بڑی فضیلت کی کوئی بات حاصل ہوتی ہو۔ ابھی آپ لوگوں کی بات ہے یا جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں اللہ رب العالمین کے دین کی بات کو سیکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہے، اس کو یہ چیز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دنیا کے کسی ایسی مجلس میں شرکت کیا ہو جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ کے کلام کو پیش نہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پیش کیا جائے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بیٹھنے میں جو لوگ وہاں پر حاضر رہیں گے اس کو بڑا ہی افسوس کرنا پڑے گا۔ مطلب ویسی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو فضیلت بتائی ہے اس میں ہم اور آپ یہاں پر شرکت کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی ہر طرح کی محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اب آئیے ہمارا جو مرکزی عنوان ہے کہ قرآن مجید سے دوری ذلت کا سبب ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، دنیا کے ہر قسم کے مسائل کے لیے، ہر قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو بھیجا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا ہے، ایک بک بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک کتاب نازل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کو ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تلاوت کیا تو انہوں نے بھی یہی معنی سمجھا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک کتاب کو نازل کیا ہے جس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارا قصہ ہے، ہمارے معاملات ہے، ہمارے دنیاوی جو بھی معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اس کے اندر تدبیر ہے۔ تو اللہ نے کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ آج ہم اور آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارا ذکر اس کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، دنیا میں دوسرے آدمی آ کے جگہ لیں گے، وہ بھی قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کو تلاوت کریں گے تو ان کے لیے بھی وہی پیغام رہے گا جو اللہ نے کہا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس سماج اور معاشرے کے لوگوں کو جس میں ہر طرح کی خامیاں، ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کے فتنے اور فساد پائے گئے، آپ نے ان کی اصلاح کی، اور اصلاح اس طرح کی کہ وہ دنیا کے اندر ایسے مثالی انسان بنے کہ اس دنیا نے جب سے سورج اس دنیا میں نکلنا شروع ہوا ہے اتنے اچھے لوگ کبھی جمع نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے تربیت یافتہ ساتھیوں کی جو ٹیم جمع ہوئی، اس ٹیم سے ویسی ٹیم اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی ایک ساتھ اچھے لوگ اتنے جمع نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو نعمت بنا کر کے پیش کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے مختلف مطلب مرحلوں کے ساتھ اس کو نازل
नाजिल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर अंबिया और रसूल में आप कुरान की बरकत की वजह से आप जो है तमाम नबियों के सरदार करार पाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखिए क्या इंतज़ाम है कि जिस नबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया वो नबी तमाम नबियों के सरदार करार पाए। हम ये भी जानते हैं कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस महीने के अंदर नाजिल किया वो महीना तमाम महीनों का भी सरदार करार पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रात में उसकी शुरुआत की वो रातों में अफजल करार पाई। जिस शहर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी शुरुआत की वो शहर अफजल करार पाया। जिस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब को दिया उसको कहा खैर उम्मत। ये तमाम चीज़ों को हम और आप जानते हैं। हजरात सहाबा ने कुरान मजीद के उस मकासिद को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पेश किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी हैसियत से बढ़ करके उस कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। आपने जो पैगाम बताया, आपने जो सिखाया और आपने उसके ताल्लुक से जो कैफियत लोगों के सामने पेश की उसको सहाबा किराम ने बड़ी दिलचस्पी के साथ लिया। खुद नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि जब कुरान मजीद की कोई सूरत कोई आयत नाजिल होती थी तो आपके दिल में ये बात होती कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए आप ज्यादा उसके लिए फिक्र करते थे और अपनी जुबान को ज्यादा चलाते थे ताकि वो आपको ज़हन नशी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाहु व कुराना फइदा क़रानाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ढारस बधाई, आपको कहा कि आप टेंशन न लीजिए, इस कुरान मजीद को आपके दिल में बैठाना, उसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद के इस पैगाम से हमें ये समझ में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कुरान मजीद की फिक्र कितनी थी। हजरात सहाबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आयत करीमा को बताते थे तो हजरात सहाबा बड़ी मोहब्बत के साथ उसको याद किया करते थे, उसको अपने बच्चों को सिखाते थे, उसको पढ़ाते थे। यही वजह है कि नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आपको कोई ऐसा सहाबी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला हो और उसी हालत में वो इस दुनिया से गया हो, मेरे इल्म की हद तक कोई एक सहाबी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कुरान मजीद से अपना रिश्ता न जोड़ा हो, कुरान मजीद उनकी पहचान न हो, कुरान मजीद की वो तिलावत ना करते हो, कुरान मजीद में वो अपने मसले का हल ना तलाश करते हो। मर्द को तो जाने दीजिए, हजरत उम्मे हिशाम नामी एक सहाबिया कहती हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा जुमा में सूरे काफ को मुसलसल पढ़ने की वजह से, जो आप मिंबर पर खड़े होकर पढ़ा करते थे, मैं सूरे काफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरे काफ को मिंबर पर पढ़ने की वजह से याद कर लिया था। जहां मर्दों के अंदर यह कमाल था कि कुरान मजीद से उनका रिश्ता था, कुरान मजीद को वो याद करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, वहीं पर सहाबियात हमारी माएँ और बहनें जो थी उस जमाने की वो भी कुरान मजीद की इस फजीलत से पीछे नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको कुरान को याद करने वाले भी बहुत सारे सहाबी मिलेंगे, कुरान मजीद को जमा करने वाले सहाबियों की भी एक तादाद मिलेगी। कुरान मजीद के पैगाम को पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकाम पर सहाबाए कराम को भेजा भी। जहां जहां इस कुरान मजीद के पैगाम को लेकर गए वहां का नक्शा बदल गया। वहां जो लोग इससे पहले जिस तरह थे उसके अंदर इतनी कुछ तब्दीली आई कि कुरान की मिसाल बनकर के रह गए। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में जो पैगाम बयान किया गया था वो पैगाम वाला मुआशरा आपने तश्कील दिया।
समाज और सोसाइटी को वैसा बनाया। यही वजह है कि हर घर में कुरान मजीद के पढ़ने, उसके याद करने और उसके ताल्लुक से बहुत सारी तदबीरें आने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और हजरात सहाबा कुरान मजीद का बड़ा एहतमाम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद याद करने पर, कुरान मजीद को हिफ्ज करने पर, उसकी तबलीग पर, उसकी नशर व इशाअत पर आपने सहाबाए कराम का ऐसा मिजाज बनाया कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर के उन्होंने कुरान का पैगाम सुनाया और वही आवाज हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में भी पहुंची। उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज हम और आप भी यहाँ पर जमा होकर के वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, वो कुरान की बात कर रहे हैं, वो नबी बरहक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की बात कर रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, अगर कुरान और हदीस का मुताला करें, तारीख के हिसाब से अगर आप पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी कुरान मजीद को सीखने सिखाने में कभी पीछे नहीं रही। वहाँ पर भी कुरान मजीद को मुकम्मल याद करने वाली बहुत सारी सहाबियात थी। जिस तरह मर्दों के अंदर एक बड़ी तादाद में थे, उसी तरह ख़वातीन में भी वहाँ पर कुरान मजीद को पढ़ने और उसकी तालीमात पर अमल करने के लिए बाकायदा लोग एक दूसरे को तहरीक दिलाते थे, एक दूसरे को माना और मतालिब पूछते थे। उनके दरमियान दिरासा हुआ करता था कुरान मजीद के ताल्लुक से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि वो कुरान मजीद की सूरे बकरा की आयत को उन्होंने कई महीनों में खत्म किया और उसकी खुशी में उन्होंने बाकायदा लोगों को एक साथ जमा करके उसको बाकायदा मतलब एक तरह से ताम का इंतजाम कराया, उनको मतलब कुछ खिलाया पिलाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस कलाम को मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो कुरान का पैगाम है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल भी किया है। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरात सहाबा में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबा और सहाबियात में कुरान मजीद से कितनी दिलचस्पी थी। कुरान मजीद की इसी दिलचस्पी की बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबियों में आप देखेंगे कि जंगे बदर में जो सहाबी शहीद हो गए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दफनाने के लिए जो आपने तरीका इख्तियार किया था, कब्र में उतारने का जो आपने सिस्टम बनाया था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज कुरान को, सहाबी में से जो कुरान मजीद के मुकम्मल हाफिज थे, आपने उसको पहले रखने को कहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी फजीलत क्या है, इसका मकाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में इमामत के लिए भी आपने कहा कुरान मजीद जो ज्यादा जानता हो वो इमामत का ज्यादा हक रखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जहां ये कुरान मजीद के साथ लोगों की दिलचस्पी थी, हजरात सहाबा कुरान मजीद के बारे में आपसे पूछते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं कुरान मजीद को एक दिन में खत्म कर सकता हूं पढ़ करके, एक दिन में मैं कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके जज्बे को देखते हुए कहा नहीं, 3 दिन से कम में कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल नहीं करो। ये आप अंदाजा लगाइए कि एक साथी, एक सहाबी, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की परमिशन मांग रहे हैं कि आप मुझे एक दिन में पूरा कुरान पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस तरीके को अपनाया, इख्तियार किया, हजरात सहाबा भी कुरान मजीद से अपनी निस्बत को अपने लिए फख्र करार दिया करते थे। उनकी मजलिसों की पहचान कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले, कुरान मजीद से अपना रिश्ता जोड़ने वालों में से थे। आपको मालूम होगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मजलिस शूरा कायम की थी, उस मजलिस शूरा में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे कम उम्र जो है उसके मिंबर थे। आप ये कह सकते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मजलिस शूरा कायम की थी, आज के दौर में उस तरह की कोई मजलिस नहीं कायम हुई जहां पर फैसले करने के लिए उनकी राय को तरजीह दिया जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उम्र में सबसे छोटे थे। कुछ हजरात सहाबा को तामुल हुआ था
کہ ये छोटा बच्चा बड़े बड़े सहाबा के दरमियान एक रुकन की हैसियत और एक मिंबर की हैसियत रखता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जब ये बात पहुंची तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को बैठा करके पूछा, इदा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व राइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि कुरान मजीद की इस आयत करीमा का क्या पैगाम है? कुरान ने जो फतह से ताबीर किया है तो इसका क्या मकसद है? तो सारे सहाबा जिनको जो मालूम था वो बयान किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि इस आयत करीमा का मतलब ये है कि अब इस्लाम मुकम्मल हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ज़माना करीब है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को मुखातब करके कहा कि तुम लोगों को जो एतराज़ है वो इसलिए मैंने दूर करने की कोशिश की है कि इसका यही मतलब है जो इन्होंने बयान किया और मैंने नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखा है। हजरात सहाबा ने कुरान मजीद की हिफाजत की, उस पर अमल किया, उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दिया, अपने बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया। हर सहाबी जो है अपने लिए इस काम को काबिल फ़ख्र समझते रहे। दुनिया के अंदर वो जहां गए वहां पर वो छा गए, वहां पर वो मिसाल बन गए। वो कुरान की बरकत की वजह से थी। आज भी हमारा अपने आप को उसी कुरान मजीद से अपनी निस्बत को जोड़ते हैं। हम भी कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, हम भी कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन क्या कुरान मजीद का जो तकाजा है, कुरान मजीद के अंदर जो कुछ बताया गया है, क्या उससे हम लोग अमली तौर पर भी जुड़े हुए हैं? अगर ये बात देखी जाए तो इंसाफ यही है कि आज हम और आप कुरान मजीद के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। कुरान मजीद से जैसी निस्बत होनी चाहिए वैसी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। इंसाफ से बात कहूँ, हकीकत पसंदी बयान करूँ तो शायद आप में से कुछ लोगों को नाराजगी आ जाए कि आज हम और आप दुनियावी एतबार से अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करवाते हैं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि दुनियावी तालीम हासिल ना की जाए। आज हमारा अपने बच्चों को बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा इंजीनियर और इस दुनिया के अंदर मुहारत हासिल करने वाले पैगाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, मगर हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती है, हमारी ये कोशिश नहीं होती है कि हमारा बच्चा ऐसा भी बने कि मेरे मरने के बाद मेरी नमाज़ जनाजा वो सही तरीके पर पढ़ा सके। है ऐसा? नहीं। ये कुरान की बरकत है कि अगर आप कुरान से अपने बच्चों को जोड़ेंगे तो आपके लिए जो सबसे बड़ी फजीलत की बात दुनियावी एतबार से जो दिखाई देगी वो ये कि आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी दूसरे को बुलाएगा नहीं। ये नहीं कहेगा अपने मस्जिद के इमाम साहब को, फलाना साहब हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है, आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिएगा। अभी मैं 2 दिन कबल की बात कर रहा हूँ, शहर अजीज आकोट में एक साहब का इंतकाल हो गया। उनके बच्चों ने पहले मुझे कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा यार तुम पढ़ा लो, तो कहा मुझको दुआ नहीं याद है, मुझको ये नहीं याद है कि कैसे कैसे क्या पढ़ा जाता है। मैं कहा सीख लो। फिर मैंने कहा अगर अभी सीखोगे वहां पढ़ाओगे तो मालूम पड़ा बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे से ही भाग जाएंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के किताब की बरकत को हमें और आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो बरकत रखी है उससे जुड़ने की वजह से रखी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद के लिए जहां बहुत सारा एहतिमाम किया था, हजरत नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नाफे इब्न अब्दुल हारिस अल खुज़ाई, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा उनकी मुलाकात हुई। वो एक मकाम उस्फान, ये मक्का से थोड़ी दूर फासले पर एक जगह का नाम है, वहां पर जब उनसे मुलाकात हुई उस वक्त वो मक्का के गवर्नर थे, मक्का के वो गवर्नर थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि यहाँ पर मेरे इस्तकबाल के लिए तुम मक्का से यहाँ आ गए हो, अपनी जगह पर किसको रखा है? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने जवाब दिया कि मेरा एक गुलाम है जिसका नाम है इब्न अब्जा। कहा गुलाम को बना दिया है अपनी जगह पर? कहा हाँ। फिर कहा क्या वजह है जो उसको तुमने बनाया है? तो उन्होंने जवाब दिया इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फ़राइज़, वो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला माहिर है, वो अल्लाह की किताब का जानकार है।
ये फजीलत, ये ओहदा, ये मनसब जो मैंने उसको दिया है वो ऐसे नहीं दिया है, बल्कि वो किताबुल्लाह का पढ़ने वाला है। उस जमाने में ये मतलब किसी की पहचान और शनाख्त हुआ करती थी। उस जमाने में लोग किसी को तरजीह देते थे तो अल्लाह की किताब की बुनियाद पर कहा, इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज़, वो अल्लाह की किताब का पढ़ने वाला है, वो कारी किताब है, और फराइज यानी विरासत जो तकसीम किया जाता है उसका इल्म रखने वाला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त बरजस्ता ये हदीस पेश किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के जरिए बहुत सारी कौमों को, बहुत सारे लोगों को इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा। कुरान पर अमल करने की वजह से, कुरान की बरकत की वजह से, कुरान को पढ़ने की वजह से, उसके तकाजे को पूरा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी कौमों को तरक्की अता करेगा। एक गुलाम को मक्का का गवर्नर बना देगा, और वही कहा अल्लाह के रसूल ने, वयज़उ बिही आखरीन, और उसको छोड़ देने की वजह से, उससे निस्बत खत्म कर लेने की वजह से, उस पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वयज़उ बिही आखरीन, बहुत सारी कौमों को, बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील और रुस्वा करेगा। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा और आपका जो मौजूदा मामला है, हमारे और आपकी जो मौजूदा सूरत हाल है, अल्लाह की किताब की रोशनी में, अल्लाह की किताब के ताल्लुक से, तो वो यही दूसरे ज़ुमरे वाला आता है। जो हमारे और आपकी मौजूदा पोजीशन है, मौजूदा सूरत हाल है, हमारा आप उस हदीस को बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने अल्लाह की किताब की तिलावत की तो एक एक लफ्ज पर जो है 10-10 नेकी। अलिफ लाम मीम पढ़ने पर इतना कहा अल्लाह के नबी, 10 नहीं 30 नेकियां मिलेगी। ये हदीसें तो हमारा बयान करते हैं, मगर हमारे घरों में इस हदीस पर अमल कराने के लिए कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी हिकमत, बच्चों के अंदर उसकी ज़हनसाज़ी करने के लिए कोई ऐसा मामला नहीं इख्तियार किया जाता है जहां पर उसको ये तहरीक मिले कि कुरान मजीद को पढ़ने से ये बरकत हासिल होगी, ये नेकियां मिलेगी, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। इसी तरह हमारा आप ये हदीस भी पेश करते हैं, खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुरान के पढ़ने वालों के हक में कुरान मजीद सिफारिश करेगा। दुनिया में हमारा आप देखते हैं सिफारिश के बहुत सारे रास्ते हैं। मुझे इस हदीस की तशरीह में अल्लामा जलालुद्दीन हफिज़हुल्लाह की वो तशरीह बहुत पसंद आई, जो मैं आप लोगों को भी बयान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह के पास कोई किसी के हक में सिफारिश करे, ये अल्लाह की मर्जी पर, ये अल्लाह की मर्जी पर मशरूत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे तो कोई किसी के हक में सिफारिश नहीं कर सकता है। कुरान में मुख्तलिफ मकाम पर इसकी तौदीह है, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से ही कोई किसी के बारे में सिफारिश करेगा। हत्ता के नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो मुआहिदीन के हक में सिफारिश करेंगे वो भी अल्लाह की मर्जी से करेंगे। लेकिन कुरान हदीस रसूल ये बताती है कि कुरान के पढ़ने वालों को, कुरान से जुड़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो कुरान सिफारिश करेगा वहां पर अल्लाह की मर्जी नहीं रहेगी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के पढ़ने वाले को, कुरान को वो हक देगा, क्योंकि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब की बरकत होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो बाकायदा सिफारिश पेश करेगा। और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को कबूल करेंगे। मेरे भाइयों, सिर्फ ये हदीस का माना और मतलब आप ज़हन में बैठा के जाएं, और हमारी माएँ और बहनें जो आई हुई है वो भी अगर इसके मतलब को समझ लें तो मैं समझता हूं कि कुरान की में जो लज्जत आएगी, कुरान से जुड़ने में जो आपको दिलचस्पी पैदा होगी, वो इस हदीस के अंदर काफ़ी है कि कुरान के पढ़ने वालों को अल्लाह की बारगाह में कुरान सिफारिश करवाएगा। ए अल्लाह मियाँ, ये तेरे को पढ़ने वाला था, ये तिससे जुड़ने वाला था, रातों को उठ करके ये तेरी तिलावत करता था, ये इसको पढ़ने की वजह से वो आंखों की नींद को कुर्बान करता था। ऐ अल्लाह, इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। मेरे भाइयों,
कितने खुशनसीब वो लोग होंगे, कितने अच्छे लोग वो होंगे जिसके हक में कुरान सिफारिश कराएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको भी उसी ज़ुमरे में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को भी कुरान मजीद से वैसे ही जुड़ने की तौफीक बख्शे। हाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद में के ताल्लुक़ से जितनी फजीलत है, कुरान मजीद को पढ़ने के ताल्लुक़ से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है, उसको हम और आप जानते हैं। जिस ज़माने में वो लोग कुरान से जुड़े हुए थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। अब आइए मेरे भाइयों, हमारा भी दावा है कि कुरान को हम मानते हैं, हमारा भी दावा है कुरान पर हम अमल करते हैं, हमारा भी दावा है कि कुरान की तिलावत हम करते हैं, हमारा भी दावा है कि कुरान मजीद हमारी किताब है। मगर क्या ये दावा कि हमारे पास कोई दलील है? सूरत हाल ये है मेरे भाइयों कि हम और आप अपने आंख से, अपनी नींद से जब आंख खोलते हैं, जब बेदार होते हैं, तो हम और आप सबसे पहले क्या देखते हैं? व्हाट्सएप चेक करते हैं, मोबाइल को उठा करके देखते हैं, और उसके बाद की जो खबरें आई रहती है उस पर देखते हैं, जिसके खबर की तस्दीक या तकजीब का, खबर के सच्चे होने या झूठे होने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, और उसके लिए हम लोग बेचैन रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम झूठी बातों के लिए अपना पूरा वजूद लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मगर जो अल्लाह की सच्ची किताब है, अल्लाह की सच्ची खबर है, अल्लाह का सच्चा मामला है, हमारे और आपकी तवज्जो उस पर से हटी हुई है। आज के दौर में हमारे और आपकी सूरत हाल ये है कि हम मोबाइल से जितना अपना लगाव रखते हैं, जितनी दिलचस्पी रखते हैं, जितना मोबाइल में दिमाग लगाते हैं, कसम अल्लाह की, अगर उसका 10% हिस्सा, 10% वक्त कुरान मजीद से जोड़ दें, तो इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद और यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें भी अल्लाह ताला जन्नत देगा। सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% की बात करता हूं। आप देख लीजिए हमारे और आपकी मौजूदा सूरत हाल, कुरान मजीद और हमारे मोबाइल से अगर दोनों से मुकाबला किया जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी किताब है, जिसको पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिसकी तिलावत का हमें हुक्म दिया गया है, जिस पर अमल करने की हमें ताकीद की गई है, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं? मौजूदा सूरत हाल इतनी है कि आदमी मोबाइल में इस कदर मगन हो गया है कि आगे पीछे क्या हो रहा है उससे भी उसको कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में मुसलमानों की जो पसमानदगी है, जिल्लत है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो यही वजह है कि आज मुसलमानों ने अपनी किताब को, कुरान मजीद को छोड़ दिया है। हाँ है, दावा है। कैसा दावा है? जब कोई नया घर बनाते हैं तो कुरान मजीद पढ़ा करके समझते हैं, कुछ लोगों को जमा करके, कुछ तालिबी इल्मों को बुला करके, उनको मिठाई खिला करके, 2-4 इधर उधर करके समझते हैं कि हाँ अब घर में सारी बरकत आ जाएगी, अब पूरा कुरान हमारे घर में ही नाजिल हो जाएगा सारी बरकतें लेकर के। हमारा है, हमारा कुरान मजीद से रिश्ता है। जब किसी की रूह नहीं निकलती है तो एक ज़ईफ हदीस का सहारा लेकर के, ज़ईफ हदीस का सहारा लेकर के उसके सामने सूरह यासीन पढ़वाते हैं ताकि वो जान निकलवा ले जाए। भाई ये किताब जिंदों के लिए है, अमल करने के लिए है, जान निकालने के लिए नहीं है। किसी की रूह को आसानी या इस तरह का जो अकीदा बना हुआ है उसके लिए ये किताब नहीं है। हाँ, हमारा अकीदा है, हमारी सोच है, हमारा कुरान मजीद से लगाव है। हाँ, कैसे? हमारी बेटी की जो शादी होती है तो उसमें जो फहरिस्त बनाते हैं, फहरिस्त सबसे अगली फहरिस्त में कुरान मजीद मा जुस्दान मा रेहाल, और उसके बाद नौशे मियाँ के हाथ में देते हैं, ये कुरान है। नौशे मियाँ भी उसको बड़ी मोहब्बत से लेके जाता है और ऊंची जगह ले जाकर के रख देता है, फिर वही ऊंची जगह ही वो पड़ा रहता है। हाँ, हमारे यहाँ कुरान मजीद से लगाव है।
ऐसे जैसा कि रिश्ते वगैरह बनाने के लिए कुछ हाफिज साहब, कुछ मौलवी साहब को बच्चों को बताने के लिए कि कुरान पढ़ना जानते हैं, इसलिए किसी को ट्यूशन लगा करके, वो भी ट्यूशन जानते हैं कितने के लिए, अगर इंग्लिश पढ़ाना हो, हिसाब पढ़ाना हो, दीगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो जहां 500 और 1000 रुपया, वहीं ट्यूशन पढ़ाने वाले हाफिज साहब को लिफाफे में पैक करके 50 रुपया महीना देते हैं। कुरान मजीद से हमारी निस्बत है, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक है। कब? जब हमारी बात न बनने वाली हो, जब हमारी बात पर कोई अमल न करता हो, जब कोई हमारी बात की हैसियत न देता हो, तब हम कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। कुरान की कसम, फलाना की कसम, यहां पर कुरान पर हाथ रखकर हम कहते हैं ऐसा बोलना हो करते, वो झूठ बोलता है। आज का मुसलमान इतना ढीठ हो गया है कि कुरान का भी हवाला दे करके वो झूठ बोलने में चुकता नहीं है, खौफ नहीं खाता है, उसके अंदर जो है रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। हाँ, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक है। कैसे? कुरान मजीद के ताल्लुक से जहां अपनी बात आ जाए, अपनी कोई दलील देने वाली बात आ जाए, तब तो कुरान मजीद से हम सबसे ज्यादा उस पर अमल करने वाले बन जाते हैं। लेकिन जो कुरान का मुद्दा है, कुरान का मकसद है, वो नहीं, अपने मकसद के लिए हम कुरान मजीद का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर ये क्लिप देखा होगा कि एक आदमी अपने एक बेटी और एक बेटे को पैसा देते हैं 100 रुपया, और उसको बोलते हैं कि ऐसी जगह इसको ले जा करके रखो जो कोई देख ना पाए। तो उसकी बेटी उस कुरान मजीद में ले जा करके उसको रख देती है। फिर वो आदमी पूछता है कहाँ रखे, तो बेटा बताता है यहाँ वहां। बेटी बताती है कि हमने इस कुरान मजीद में रखा है। वो आदमी बहुत ताज्जुब से पूछता है कुरान में क्यों रखा? तो वो कहता है अब्बू जान, वो कहती है, वो बच्ची कहती है अब्बू जान, कुरान मजीद वो किताब है जिसको सिर्फ रमजान में लोग उठाते हैं ना, बकिया उसको कोई देखते ही नहीं है। तो ये है, ये हमारे और आपकी पहचान है। पहले के जमाने में, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इतनी रोशनी नहीं थी, इस तरह के मामलात नहीं थे, मगर घरों में सुबह जो है वो कुरान मजीद की तिलावत से होती थी। आप मुस्लिम महल्लों की पहचान इसी से लगाई जाती थी कि लोग जब सुबह में निकलते थे तो वहां पर कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी, कुरान मजीद के गुनगुनाने की आवाज आती थी। उस कुरान मजीद से पहचाना जाता था कि हाँ ये मुस्लिम मोहल्ला है। आज है आपके पास एक सर्वे है मेरे भाइयों, जाहिल लोगों को तो जाने दीजिए, बेचारे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो कुरान मजीद से जुड़े हुए होने का दावा करते हैं, जिनको कुरान पढ़ना आता है, जो कुरान सिखाने और सीखने का काम अंजाम देते हैं, उसके बारे में एक सर्वे रिपोर्ट है कि 85% अफराद कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते। कितने? 85%। ये सर्वे रिपोर्ट है कि कुरान मजीद जिनको पढ़ना आता है, कुरान मजीद के मानी और मतालिब पर जो गौर करने की ताकत रखते हैं, वो लोग भी कुरान मजीद नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद भी हमारा दावा है कुरान हमारी किताब, कुरान वाले हम हैं, हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। कैसे होगा मेरे भाइयों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा व कज़ालिका नजज़ी मन असरफ़ व लम युमिन बिआयाति रब्बी व लअज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद की आयत करीमा 16वें पारे में है। हमारी माएँ और बहनें भी और आप लोग भी जाकर के इस आयत करीमा को तलाश कीजिएगा। जिस जुबान को आप जानते होंगे तर्जुमा के एतबार से, मराठी जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, उर्दू जानते होंगे, इंग्लिश जानते होंगे, जिस जुबान को आप जानते होंगे, आप उसको उस जुबान में, जैसे हम देखिए ना बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, उसी तरह आप अपने घरों में पोस्टर लगाइए कि रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है। कुरान मजीद की आयत करीमा से मुंह मोड़ने वाले, कुरान को छोड़ने वालों का अंजाम क्या है। आज हम और आप ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से,
मुआमलाती एतबार से, तिजारती एतबार से, मईशत के एतबार से परेशान हैं। हर कोई परेशानी का रोना रोता है, हर कोई एक दूसरे को अपने मसाइल को लेकर शिकायत करता है, लेकिन कोई ये नहीं ध्यान देता है कि हमारी इस परेशानी का सबब क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन अरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, ये जो कोई मेरी आयत से मुंह मोड़ेगा, जो कोई मेरी आयत करीमा से अपने आप को हटा लेगा, दूर कर लेगा, उससे अपनी निस्बत नहीं रखेगा, उसकी तिलावत नहीं करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, सबसे पहली परेशानी, सबसे पहली जो जिल्लत की शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला ने किया, कहा फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, परेशान कर देंगे, उसकी तिजारत मफलूज कर देंगे। मईशतन दनका, आज हर कोई शिकायत कर रहा है कि मेरी ऐसा है, वैसा है, दिस दैट, बहुत सारी बातें हैं। फ़इन्न लहू मईशतन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम ऐसे लोगों को अंधा और नाबीना उठाएंगे। अंधा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो आदमी कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं दुनिया में तो बड़ी आंखों वाला था, वमन अरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे रब, ऐ परवरदिगार, तूने मुझको अंधा और नाबीना क्यों उठाया? मैं दुनिया में बड़ी आंखों वाला था, इतनी बड़ी आंखों वाला था कि लोगों के फैसले करता था, लोगों के मसले को हल करता था, लोग हमारे पास अपने मामलात लेकर के आते थे। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, अल्लाह ताला कहेगा कि दुनिया में रहकर तुमने हमारी आयत को भुला दिया था। हाय अफसोस, हाय अफसोस, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, हमारे और आपकी जो कैफियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि रब की बारगाह में हमारे और आपके लिए भी कहा जाए कि तुमने हमारी आयत को, जोर से बोलिए, हमारी आयत को भुला दी, जोर से बोलिए, हमारी आयत को भुला दिया था। तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तुम बहुत बड़े ताजिर थे, तुम बहुत बड़े सियासतदान थे, बहुत पैसा कमाने वाले थे, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बहुत बिजी, कहते ना बहुत बिजी हूं, शेड्यूल टाइट चल रहा है, टाइम नहीं है। आज प्रोग्राम में आने के लिए कितनी कोशिशें की जाती है, कितनी तदबीर इख्तियार की जाती है, उसके बाद भी लोगों के पास टाइम नहीं है। क्या हम और आप अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगे कि ऐ मौला, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा ताजिर था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो अल्लाह ताला कहेंगे वाह बहुत अच्छा काम करके आए? नहीं नहीं, कुरान मजीद की आयत करीमा को आप लिखिए अपने दरवाजे पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, कहा दुनिया में रह करके तुमने हमारी आयत करीमा को भुला दिया था, उससे तुमने अपना ताल्लुक तोड़ लिया था, उससे तुम्हारे मामलात नहीं थे, आज हम भुला दिए। तुमने दुनिया में जैसा हमारी किताब के साथ किया, हमारी बात से के साथ किया, आज हम वैसा कर रहे हैं। अगर इंसान सिर्फ इतना समझ जाए कि मैं कुरान मजीद की तिलावत तो जो करता हूं, मैं अपने रब से गुफ्तगू करता हूं, अपने रब से बात करता हूं, अपने रब को मुखातब करके बोलता हूं जो मेरे रब ने कहा है, इतनी बड़ी फजीलत की बात है। दुनिया में लोग किसी बड़े आदमी से कुछ मौका मिलता है तो अपने लिए तस्वीर खींच करके व्हाट्सएप पर, अखबार में शाये कराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू वाली ये किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वकज़ालिकल यौम तुनसा वकज़ालिका नजज़ी मन असरफा वलम युमिन बिआयाति रब्बी, कहा ये हर उस आदमी का बदला है, अंजाम है जो इसराफ करे और हमारी आयत करीमा को न माने। वला अज़ाबुल आखिरति अशद्दु व अबक़ा, और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में जहां ये जिल्लत है, ये रुसवाई है, ये पशिमानी है, अल्लाह ने कहा आखिरत में उससे बड़ा अज़ाब है, उससे बड़ा अज़ाब है। अब वो अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह ताला किस तरह का अज़ाब हमें और आपको। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत करीमा की शरह करते हुए कहते हैं तकफ़्फ़लल्लाहु लिमन क़रअल क़ुरान व अमिला बिमा फ़ीह अन्नहु ला यदिल्लु फ़िद दुनिया व ला यशक़ा फ़िल आख़िरह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकफ़्फ़लल्लाह, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए काफ़ी है
लिमन क़राअल कुरान, जो कुरान मजीद को पढ़े, उस पर अमल करे, उसके तकादे को पूरा करे, व अमिल बिमा फी अन्नहु ला यज़िल्लु फी दुनिया, तो ऐसा आदमी दुनिया में गुमराह नहीं होगा। अन्नहु ला यज़िल्लु फी दुनिया, ऐसा आदमी दुनिया में बदबख्त नहीं होगा, गुमराह नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। अन्नहु ला यज़िल्लु फी दुनिया वला यशक़ा फिल आखिरा, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की फहरिस्त में वो बदबख्त आदमी भी नहीं माना जाए। मेरे भाइयों, आज दुनिया में हमारे और आपके अमल से जो सबसे ज्यादा सताई जाने वाली किताब है वो कुरान मजीद है। हाँ, और ये भी हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस कुरान मजीद से ही लोग जुड़ रहे हैं। लोग कुरान मजीद की ही तिलावत करते हैं, लेकिन हमारे और आपके यहाँ से कुरान मजीद से जैसा ताल्लुक़ होना चाहिए वो ख़त्म होते जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरक़ान के अंदर जो बात बताई है वो भी हमें और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अल्लाह ने कहा वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह के रसूल मुक़द्दमा दायर करेंगे, कहेंगे या कौमी वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू, आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम के लोग हैं। क्या है? ये मेरी कौम के लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, कुरान से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था, कुरान मजीद से उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस आयत करीमा की शरह में अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह का कौल है कि रब्बुल आलमीन की शिकायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब की बारगाह में शिकायत दर्ज कराएंगे उसमें हर वो आदमी शामिल होगा, गौर से सुनिएगा, हर वो आदमी शामिल होगा जिसने कुरान मजीद को कंटिन्यू 3 दिन तक नहीं पढ़ा होगा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। अगर मैं यहां पर हाथ उठवा लूं तो शायद मुझे शर्मिंदगी होगी कि हमारे साथियों में से अक्सर ऐसे ही नजर आएंगे जिन्होंने 3 दिन के या 3 महीने से कुरान को हाथ नहीं लगाया। 3 महीने से कुरान को हाथ नहीं। हमारे यहां तो कुरान मजीद रमजान की किताब बनकर के रह गई है। रमजानुल मुबारक के बाद जो रख देते हैं फिर दोबारा देखते नहीं हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान मजीद से हमारी निस्बत जब तक मजबूत नहीं होगी वब तक हमारे अंदर पाई जाने वाली ज़हनी, जिस्मानी और जो भी बीमारियां हैं उसका इलाज नहीं होगा। बस औकात आप देखते होंगे कि एक इंसान तमाम डॉक्टरों के पास चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं निकलता है, कोई बीमारी नहीं रहती है, मगर उसके बाद भी वो बेचैन रहता है। ऐसे लोगों से मेरी अपील है, ऐसे लोगों से मेरी दरखास्त है, ऐसे लोगों के लिए मेरी ये दवा है, मैं तजवीज करके बता रहा हूं कि आप कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कीजिए। आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपके अंदर का जो कि वो बेखाबी है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों ने इस मकाम को नहीं समझा है। कुरान मजीद की जो बरकत है वो बसा औकात वो बरकत हमसे इसलिए भी रूठ जाती है कि हमारा उससे तो कोई ताल्लुक नहीं होता है, कुरान मजीद से हमारा कोई लगाव नहीं होता है, इसलिए भी हम बहुत सारी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने तुम्हारी तरफ कुरान को नाजिल किया, इसमें शिफा है। अब कुछ लोगों ने शिफा का मतलब यही निकाल लिया कि बाकायदा उसको कागज की शक्ल में किसी पानी में डाल करके उसको पिलाना शुरू कर दिया। बहुत सारी तदबीर लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जबकि शिफा यही है कि इंसान उससे जुड़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ज़हन को हर इस तरह के तमाम मामला से साफ कर देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की बरकत है। जो तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरात सहाबा ने अमल करके बताया था उससे अगर हट जाएं तो ये कुरान मजीद हमारे लिए शिफा नहीं, हमारे लिए बसा औकात हमारे गुनाह को बढ़ाने का सबब बनेगा।
चूँकि जो सिस्टम, जो तरीक़ा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, उससे हमारे और आपका लगाव नहीं रहेगा। कुरान मजीद आज दुनिया की सबसे मज़लूम किताब है। कुरान मजीद के ताल्लुक से जहां हम लोग तिलावत में उसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वही ऐसा भी मामला है कि कुरान मजीद के मानी और मतलब को अल्लाह ने क्या कहा है, कुरान से हमारा क्या मुतालबा है, कुरान हमसे क्या चाहता है, इस पर भी हमारे और आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस पर भी हमारे और आपके लिए कुछ नहीं। हालांकि इसी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी जुबान में कोई चीज लिख करके आए, या आपको कोर्ट से, कचहरी से, अदालत से, पुलिस के महकमे से या कहीं से कोई ऐसी जुबान में या कोई ऐसे सिस्टम की बात आए जो आप नहीं समझते हो, तो आप उस आदमी के पास जाकर के समझने की कोशिश करते हैं जो उस जुबान का जानने वाला हो, जो उस अल्फाज की तशरीह को समझता हो, उसके मानी और मतालिब को जानता हो। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको खिताब किया, हमें और आपको अपना पैगाम दिया है, और हम और आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम और आप उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अब बताइए कि दुनियावी एतबार से हम और आप पैसा खर्च करके उसकी जुबान को समझने की कोशिश करते हैं, और कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रिश्तों हिदायत के लिए नाजिल किया है, उसके लिए हम कुछ भी वक्त नहीं लगाते। कुरान मजीद के ताल्लुक से रस्मी तौर पर बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, मगर कुरान मजीद की बाकायदा कोई महफिल मुनक़िद हो जिसमें कुरान मजीद सीखा जाए, सिखाया जाए, उसके मानी और मतालिब को बताया जाए, इसके लिए कोई तहरीक मजबूत शक्ल में नहीं है, हमारे शहर में नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर लोग अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं और उसको अपना रंग चढ़ा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह का रंग उस पर नहीं चढ़ने देते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग नहीं चढ़ने देते हैं, जो कुरान मजीद का तकाजा है। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों, मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा पस्ती से हमें और आपको अगर निकलना है, हमें और आपको अगर दुनिया में कामयाब होना है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज आप लोगों से दरखास्त करूंगा, कुछ भी हो जाए, जितना बड़ा नुकसान हो जाए, जितनी बड़ी परेशानी दुनियावी एतबार से हो जाए, हम अपने घर से बाहर उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक कि कुरान मजीद की तिलावत। उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद चाहे एक रुकू सही, कुरान मजीद की एक आयत सही, हम रोजाना पढ़ने की अपने अंदर आदत डालेंगे, अपने घरों के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने समाज और मुआशरे के अंदर, जिन लोगों के ऊपर हमारी सरपरस्ती है, हम उन लोगों के दरमियान ये बात कि जब तक कि कुरान मजीद की तिलावत नहीं करोगे, तुम्हारे लिए ये चीज हलाल, ये चीज नहीं है, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है, अपने घरों के अंदर अगर ऐसा माहौल बनाएंगे, तो उसके बाद देखिएगा जो उसकी बरकत आएगी, उसके बाद जो उसके असरात मुरत्तब होंगे, वो यकीनन बहुत बेहतर होंगे। और यही मुतालबा है हमसे। दुनिया के अंदर जब लोगों में कुरान मजीद के अरबी जुबान में समझाने की कोशिशों में कुछ कमी आई, तो लोगों ने हर जमाने के अंदर कुरान मजीद का वहां की मौजूदा जुबान के अंदर तर्जुमा करके लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों पहले फजीलतुल शेख अरशद मुख्तार मोहम्मदी, रईस जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव की सरपरस्ती में अल कुरान व तदब्बुर व अमल नाम की एक तफसीर, जो माशाअल्लाह हिंदुस्तानी माहौल में अब तक मेरे इल्म की हद तक पाई जाने वाली तमाम तफसीरों में सबसे अनोखी और सबसे अलग तर्ज की है। आप में से जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, उसको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल अलग अंदाज की तफसीर है। और यही तफसीर का जो नहज है, जो लिखने का उसका अंदाज है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलब। क्या प्यारा अंदाज उन्होंने अपनाया। कुरान मजीद की कोई आयत करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अपने रिश्तेदारी को जोड़ो, जिसके साथ तुम्हारा मामला खराब हो जाए उसको तुम अपने करीब लाओ। हमारा पढ़ लेते हैं, पढ़ के लोगों को बताते हैं कि कुरान मजीद में रिश्ता जोड़ने की बात की गई है, मगर उस कुरान की तफसीर में उसको लिखने वाले ने 20 साल की मेहनत के बाद जो तैयार किया है, उसमें लिखा हुआ नहीं, फोन उठाइए, मोबाइल लगाइए,
अपने उस रिश्तेदार को जो आपसे दूर है, जो आपसे किसी वजह से नाराज है, कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे फला भाई, आप हमसे नाराज थे, ऐसा था वैसा था, मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमने कुरान में पढ़ा है कि ऐसा ऐसा है मामला। क्योंकि कुरान अमल चाहता है, कुरान अमल चाहता, अल कुरान तदब्बुर व अमल। ये कुरान का जो पैगाम हमने समझा, उस पर अमल भी होना चाहिए, उस पर अमल भी। अब कहीं पर कुरान मजीद में कहा गया कि अल्लाह की राह में सदका दो, अल्लाह की राह में खर्च दो करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भेजो। तो अब कुरान का वो मुतालबा है, तो आपको अपने जेब में से 10 रुपया इसे, ये कुरान के पैगाम पर अमल हुआ। मेरा रब कह रहा है कि तुम मुझे कर्जा दो, वहीं पर अमल होना चाहिए। कहा ऐसा अगर माहौल बनता है तो देख लीजिए क्या होगा। जिस जमाने में कुरान मजीद से लोगों की निस्बत थी, लोग कुरान मजीद से जुड़े हुए थे, उसकी बात ही क्या थी। बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में उनके नामों को सुन करके जलजले तारी हो जाया करते थे, कपकपी पैदा हो जाती थी, बावजूद के उनको एक दिन में 3 टाइम के खाने की चीजें मयसर नहीं हुआ करती थी। आज हमारे घर में महीनों के राशन मौजूद हैं, मगर हमारे ईमान की कोई भी ऐसी चिंगारी नहीं है जो कोई सुने तो किसी तरह से कहे ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये मुसलमान है कुरान वाला, ये कुरान पढ़ने वाले हैं, ये कुरान पर अमल करने वाले हैं, ये कुरान से रिश्ता जोड़ने वाले हैं, ये कुरान इनकी किताब है, जिस किताब का ये पैगाम है ऐसा नहीं। बल्कि आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमानों को हम अपना पड़ोसी नहीं बनाएंगे। जहां तरक्की याफ्ता शहर है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, जहां पर इस तरह के लोग हैं, वहां मुसलमानों को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते। अल्लामा इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में है कि उनका एक पड़ोसी ईसाई था। उन्होंने अपना घर बेचने के लिए निकाला तो मार्केट की जो कीमत थी, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आज के हिसाब से 1 लाख रुपए है, तो उन्होंने कहा मेरे घर की कीमत 3 लाख रुपए। लोगों ने कहा भाई मार्केट में ये रेट तो नहीं है। कहा मेरे घर की कीमत है 3 लाख। कहा ऐसा क्या है तेरे घर में, कौन सा हीरे जवाहरात और सारी चीजें लगी हुई है? कहा नहीं, मेरा पड़ोसी अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, 1 लाख मेरे घर की कीमत और 2 लाख मेरे पड़ोसी की कीमत। ये थे भाई गैर इस बात का एतराफ करते थे कि ये मुसलमान हैं, ये लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, उसकी किताब पर अमल करने वाले, ये कुरान वाले लोग हैं। मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज हमारे और आपकी कुरान मजीद से निस्बत कहां तक, हम कितना अपने अंदर के ज़मीर को उस कुरान से जोड़े हुए हैं। कितनी महफिलें मुनाकिद करते हैं, कितना कुरान के हलके लगाते हैं, कुरान पढ़ाने वालों के साथ हमारा योगदान क्या है, किसी मस्जिद में दरसो तदरीस फरीदा अंजाम देने वालों के साथ हमारा रवैया क्या है। हालात तो ये है कि बहुत सारे हमारे और आपकी सूरत हाल और रवैयों को देखकर अपने बच्चों को आलिम बनाने से डरते हैं, अपने बच्चों को हाफिज बनाने से डरते हैं, अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाने से डरते हैं कि वो आगे चल के कैसे रहेगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा, कैसे वो अपना पेट पालेगा। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अपने गिरीबान में झांकिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए, कुरान मजीद से हमारा लगाव कैसा है, क्या ये लगाव, क्या ये निस्बत, ये क्या ताल्लुक, क्या हमें अल्लाह की बारगाह में कामयाबी से हमकिनार कर सकती है, क्या हम इस तरह का फरीजा अंजाम देकर अल्लाह के यहाँ कामयाब हो सकते हैं, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम कुरान के ताल्लुक से दिया था हम उसका हक अदा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से के सामने सरबा सुजूद हो जाइए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको गौर करना पड़ेगा, हमें उस रास्तों को इख्तियार करना पड़ेगा जो रास्ता हमें कुरान से करीब कर दे, जो रास्ता हमें उसकी तालीम से दूर कर दे, वो रास्ता जो हमें उसकी नशर व इशाअत के जो तकादे हैं उस पर जोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि आप लोगों की मौजूदा क़यादत ने
آپ لوگوں کے موجودہ ذمہ داران نے اس جانب جو کوشش کی ہے وہ بہرحال آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، اس قسم پرسی کی حالت میں ایک قندیل اور ایک روشنی ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے دوسری جگہ کے لیے بھی۔ قرآن کو چھوڑ کر کے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، نہیں، صاحب کتاب ہونے کا صرف نعرہ لگا لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ وہ کسی دور میں کہا جاتا رہا ہوگا پیدرم سلطان بود، اب وہ ساری چیزیں نہ تو یہ اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ ہے اور نہ یہ دنیا کے کسی اچھے شخص کا یہ بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگاؤ رکھیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیے، اس کے لیے محفلیں اور حلقات بنائیے، اور اس کے تعلق سے جہاں کہیں آپ کو آواز دی جائے، جہاں کہیں آپ کو پکارا جائے تو آپ فخر سے، آپ اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے کہیے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب کے لیے، یہ حلقات کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے ہمارا بھی یوگدان آپ کے ساتھ رہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کچھ حد تک کہ ہم لوگوں کی موجودہ پستی میں کچھ روشنی کی کرن ملے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے بھائیوں، ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی آسان ترجمہ قرآن مجید، آسان، ایک ایسا آسان جو عام آدمی سمجھ سکے، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں آئے گی۔ میں انہی چند کلمات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن والا بنا دے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی قرآن مجید سے ہم لوگوں کو جوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کے جو مطالبے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ جب تک اس دنیا میں رکھ اللہ تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، اور اے اللہ جب تو اس دنیا سے اٹھا تو اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔